کہ ہو کیا رہا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ میں پوائنٹ سکورنگ کروں یا وسیم اختر صاحب پوائنٹ سکورنگ کریں، بہتر یہ ہوگا کہ سر جوڑ کے اس کا کوئی لائے عمل نکالیں، کوئی اس کا حل نکالیں۔ مثلاً ایک حل یہ بھی ہو سکتا ہے، جہاں مجھے بتایا گیا کہ ابھی کچھ نئے چوکیاں بنائی جا رہی ہیں، نفری زیادہ بھیجی جا رہی ہے مختلف تھانوں میں، اور پلس آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی موبائل فون کے تھرو بہت سارے جرائم بھی ابھی حل ہوئے ہیں، ان کو نکالا گیا ہے، یہ بھی ہوا ہے۔ تو اگر یہ ایک بھتہ خوری ایک ایلیمنٹ ہے ایسا جس سے شہریوں کو پریشانی ہو رہی ہے اور بالکل ان کی شکایت جو ہے وہ بجا ہے، تو میں سمجھتی ہوں کوئی آپس میں ایسا کانٹریکٹ پیدا ہونا چاہیے بٹوین the law enforcing agencies and the people who are living in that area where this whole thing is going on. جی تو وہاں پر کوئی آپس میں ربط ضبط ہو، ایک دوسرے سے کمیونیکیشن فاسٹ ہو، یا کوئی ایسی ہاٹ لائن بنائی جائے، تو میں سمجھتی ہوں چیزوں کا حل نکل سکتا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ ناظم آباد میں ایک بینک پہ ڈکیتی ہوئی تھی اور بہت بڑی ڈکیتی ہونے جا رہی تھی، لیکن بر وقت ایک آدمی نے پولیس والوں کو اطلاع کر دی اور پولیس والے بھی بر وقت پہنچ گئے، جس کے نتیجے میں وہ 45 لاکھ یا 45 کروڑ یا جو بھی کچھ تھے یا 4.5 کروڑ وہ غالباً بچ گئے لوٹنے سے، اور بینک کو فائدہ ہوا، لوگوں کو فائدہ ہوا، علاقے کو فائدہ ہوا، اور جرم کو نقصان ہوا۔ جی ٹھیک ہے، اس میں بالکل 2 ڈاکو بھی مارے گئے تھے۔ ٹھیک ہے، میں خالی عتیق میر صاحب، یہ اگر 1 منٹ آپ مجھے یہاں دے دیں، پھر میں وسیم اور صدیق الفاروق صاحب سے پوچھوں گی۔ یہ بتائیے جو قائم کی گئی تھی، اور خاص طور پر مجھے یاد ہے جب چیف آف دی آرمی سٹاف سے ملاقات آپ لوگوں کی کروائی گئی تھی، پورے کراچی کے سینئر انڈسٹریلسٹ کی بھی اور دیگر لوگوں کی بھی، تو رینجرز نے فوری طور پر ایک کہا تھا کہ ایک لائن دیں گے، اس نمبر پہ آپ فون کریں گے، فوراً ایکشن ہو جائے گا۔ اب مجھے بتائیں، آپ اس ہاٹ لائن کو استعمال کر رہے ہیں؟ وہ نمبر آپ کے پاس ہے؟ وہ نمبر اس طور پہ تو کام کرتا ہے جیسے علاقے میں کوئی انتشار ہو، کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہو، لیکن یہ جو سیل فون کے ذریعے جو تھریٹ کیا جاتا ہے، جو ویپنز کے ساتھ تاجروں سے بھتے کے لیے رابطہ کیا جاتا ہے یا اغوا کیے جا رہے ہیں لوگ، اس میں رینجرز کچھ ہیلپ لیس معلوم دیتی ہے۔ یہ یقیناً سرکاری دلچسپی اب ضروری ہو گئی ہے کہ اس معاملے میں پولیس کے ساتھ کھڑی ہو، لا انفورسمنٹ اداروں کے ساتھ کھڑی ہو، لیکن گزشتہ 8 مہینے میں حکومت نے کوئی سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا، جس سے یہ ہوا کہ یہ سلسلہ اتنا زیادہ گمبھیر ہو گیا، اتنا سنگین ہو گیا کہ آج پولیس کچھ کرنا چاہتی ہے، لیکن اس کے باوجود میں دیکھ رہا ہوں کہ پولیس کے ہاتھ چھوٹے ہیں اور یہ جرم بہت لمبا ہو چکا ہے۔ جب لوگ آپ کو رینسم کی کال کرتے ہیں یا جب جو آپ سے جی پلیز بولیں۔ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، جو کرمنل ہوتا ہے وہ زیادہ سمارٹ ہوتا ہے، اور اگر اس کے پاس سمارٹنس نہیں ہوگی تو وہ کامیاب بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ جتنے بھی آپ فلمیں بنتی ہیں چوری ڈکیتی پہ، وہ جتنے چور اور ڈاکو ہوتے ہیں وہ بڑے سمارٹ ہوتے ہیں، بڑے ٹیکنالوجی سیوی ہوتے ہیں، ان کو چیزوں کا بڑا پتہ ہوتا ہے۔ میں یہاں سمجھتی ہوں عتیق میر صاحب نے جس بات کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، یہاں پر پولیس والوں کو اسپیشل کورسز کروانے چاہیے انفارمیشن ٹیکنالوجی میں، یا یہ کہ جو بھی موبائل سسٹم اور ڈیجیٹل سسٹم ہمارے ہاں ہے، نہیں وہ تو تب ہوگا نا فوزیہ جب ہمیں دسترس نہیں وہ تو ہم تب کر سکیں گے جب ہم یہ طے کر سکیں ایٹ لیسٹ کہ کیا ان کی جماعتوں سے وابستگی ہے۔ میں ایک لاسٹ کوسچن کر کے واپس آ رہی ہوں صدیق الفاروق صاحب کی طرف، گفتگو کا آغاز کو لے جاؤں گی، اور وسیم کی طرف۔ امیر صاحب میں لاسٹ کوسچن آپ سے کرنے لگی ہوں، خالی اتنا بتا دیجیے جب فون کرتے ہیں تو اپنا کسی پارٹی سے تعارف کرواتے ہیں؟ یقیناً بعض لوگ ایسا بھی کرتے ہیں، جبکہ ایسا ضروری بھی نہیں ہے کہ ان کی بات پہ اعتبار کر لیا جائے، لیکن بہرحال وہ اب تو اس چیز سے بھی مستثنا ہیں۔ وہ صرف اتنا بتاتے ہیں کہ فلاں نمبر پہ ہم نے جو کال کی تھی اور اس بندے کو قتل کر دیا گیا تھا، آپ جا کے تصدیق کر لیں، ہم وہی لوگ ہیں اور وہی حشر آپ کا بھی کریں گے اگر آپ نے ہمیں بتا نہ دیا۔ ٹھیک ہے، اوکے عتیق میر صاحب بہت بہت شکریہ۔ صدیق الفاروق صاحب، یہ کہ اب 2 جو ہیں باتیں حکومت وقت کے سامنے ہیں، وہ جو وزیر اعظم والی بات ہے اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن یہ ایک بڑا سیریس ایشو ہے۔ مجھے خالی تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ آپ اس ایشو کو نیشنل اسمبلی میں کس طرح ٹیک اپ کریں گے، یا آپ کی اپنی کیا ریزرویشنز ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں کہ اس پہ کس طرح کا ایکشن ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جیسمین، ایک اور پروگرام میں بھی وسیم اختر میرے ساتھ تھے، باقی یہ چیز سامنے آ چکی ہے کہ
मुजरिमों की या मुलजिमों की फहरिस्तें दी जा चुकी हैं। कराची में अगर आप जाएं मालूम होगा कौन कौन भत्ता ले रहा है, इलाके तकसीम हुए हुए हैं। और यहाँ वसीम अख्तर साहब कहते हैं कि जनाब पुलिस भी नाकाम हो चुकी है, वज़ीर आला भी नाकाम हो चुके हैं, और अतीक मीर साहब कहते हैं रेंजर्स भी नाकाम हो चुकी है। तो मैं ये अर्ज करूंगा, जब ये भी मालूम हो, वसीम अख्तर साहब ये भी कहते हैं कि फलां वक्त में फलां मुजरिम पकड़े गए, वो भी पता है, छुड़वाए किसने वो भी पता है। अब जब ये सारी चीजें मालूम है, कोई चीज गायब नहीं हो गई, तो किस वक्त ये जो ट्रेनिंग कब दी जाएगी? फिर हुकूमत की जिम्मेदारी क्या है, जिसे 4 साल पूरे हो चुके हैं, 5वां साल तो इलेक्शन का है। तो ये सारी चीजें जब मालूम है तो विल नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जिस मुल्क का वजीर आजम खुद ही सुप्रीम कोर्ट बन के ये कहे कि मैं आर्टिकल 6 के तहत नहीं, मैं वायलेशन करूंगा, मैं तौहीन अदालत करूंगा और 6 महीने सजा पाऊंगा, जिस मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव इस तरह का आदमी हो और हुकूमत का सरबराह हो, वजीर आजम हो, उस मुल्क में और उस सूबे में और कराची में ये कुछ नहीं होगा तो फिर और कहां होगा भाई? नहीं, ये तो अगर इन लोगों का यही रवैया नहीं है। मैं आपकी बात को वापस वसीम के पास ले जाती हूँ। वसीम, आपने कहा लिस्टें भी दी जा चुकी हैं, लोगों को आइडेंटिफाई भी किया जा रहा है, किसी वक्त में पकड़ा भी गया, छोड़ा भी गया। मुझे ये बताइए कि क्यों आप कह रहे हैं चीफ मिनिस्टर, रेंजर्स सब बेबस हैं, और अगर ये लोग बेनकाब हो चुके हैं तो आप आइडेंटिफाई क्यों नहीं करते इनको? आप असेंबली के में दे दें लिस्ट, सामने लेके आए, मतलब आप वाज़ेह तौर पे बताएं ना कि कौन कौन इनको किनकी सरपरस्ती कर रहा है कराची में। देखें, लॉ एंड ऑर्डर सूबे का मामला है, और हमने ये आवाज़ नेशनल असेंबली में आज उठाई है, फ्लोर पे भी और मीडिया के सामने भी। उसकी वजह यही बनी कि वहाँ इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। इस वक्त इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, ताजिर बहुत ही मुश्किल में, जैसा कि आपने सुना। एक तो टैक्सेस इतने ज़्यादा हैं, महंगाई इतनी ज्यादा है, ऊपर से भत्ता भी देना पड़ता है ताजिर को। मैं आपके चैनल के तवस्सुस से प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस तरह ISI और MI जिन फोन्स को चाहती है वो लोकेट कर लेती है, उनके पास इक्विपमेंट है। प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए कि ये फैसिलिटी सिंध गवर्नमेंट को भी दी जाए, ताकि जो नंबर्स लोकेट नहीं होते हैं, नहीं हो रहे हैं, वो हो सके। नहीं, IB के पास सिंध गवर्नमेंट के पास ये। वसीम, आप होम मिनिस्टर रह चुके हैं, आपको सुने, मेरी बात कंप्लीट हो जाए फिर बात करें। मेरी बात कंप्लीट होने दें प्लीज। यही टैक्स ताजिर जो देता है उससे तनख्वाह मिलती है फौज को, और फौज के पास ये इक्विपमेंट है, ISI और MI दोनों के पास, कि वो नंबर्स लोकेट कर सकती है बड़ी आसानी से। सिंध के पास नहीं है, सिंध पुलिस के पास नहीं है। अगर ये फैसिलिटी उनको दी जाए, और ये जो भत्ता माफिया के जो गैंग्स हैं, जो क्रिमिनल एलिमेंट हैं, चाहे वो कोई भी हैं, किसी जमात से भी ताल्लुक है उनका, उनको पकड़ें, गिरफ्तार करें। सीरियस मैटर है, सारा रेवेन्यू शिफ्ट हो रहा है, लोग फैक्ट्रियां बंद कर रहे हैं, जाने जा रही हैं। तो इसको डायरेक्शन फिक्स करें, प्रायोरिटी फिक्स करें और इस पे इंप्लीमेंट करें, काम करें। कोई काम नहीं हो रहा, इसीलिए हमने आज नेशनल असेंबली में आवाज उठाई है कि खुदारा प्राइम मिनिस्टर साहब, प्रेसिडेंट साहब इस पे इंप्लीमेंट कराएं। फौजिया वहाब साहब नहीं, इन्होंने कहा है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मंजूर वसान साहब से कहा है, लेकिन उनकी बस की बात नहीं है। वो कह रहे हैं रेंजर्स की भी बस की बात नहीं है, चीफ मिनिस्टर की भी नहीं है, और किसी भी पार्टी से ताल्लुक है तो बालातर होके काम करें। काम नहीं हो रहा फौजिया, यही बात सामने आ रही है आई थिंक तीनों चारों अदवार से, और ताजर बरादरी भी कुछ इसी तरह की बातें कर रही है। जी बिल्कुल, अगर नताइज ये हैं तो यकीनन यही हम कह सकते हैं कि काम नहीं हो रहा है। लेकिन मैं समझती हूँ पिछले 1 सालों में काफ़ी ज़्यादा जो केसेस थे वो मैंने देखा कराची की पुलिस ने उसको सॉल्व किया है। हो सकता है उस स्केल पे ना सॉल्व कर पा रहे हों जो कि और ममालिक में मुख्तलिफ बड़े शहरों में होते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ रिलेटिव टर्म्स में मैं पुलिस की कारकर्दगी को बेहतर देखती हूँ। और अगर बिलफर्ज वहाँ कोई कमी है तो वसीम अख्तर साहब फॉर्मर होम मिनिस्टर रह चुके हैं, प्लस हमारे इत्तेहादी हैं। बेहतर यह है कि इत्तेहादी ये उन्हीं की अपनी हुकूमत है, अगर वो समझते हैं कहीं प्रॉब्लम है तो उसको प्रॉब्लम को रिजॉल्व करवाएं, और अगर कहीं गैप पाया जाता है उस गैप को ख़त्म करवाएं। अगर वो करेंगे तो हम
मतलब वेलकम करेंगे, ये तो अच्छी बात होगी। यहाँ पर मैं नहीं समझती हूँ वसीम आप हंस क्यों रहे हैं? हाँ, इसमें हंसने की क्या बात है? वो कह रही हैं आपकी हुकूमत है, आप हुकूमत का हिस्सा, अगर आप रिजॉल्व कर सकते हैं तो करवाएं। ये हम एहतजाज क्यों कर रहे हैं? जब कहीं से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा तो ही हमने असेंबली में आवाज उठाई है कि इसको रिजॉल्व करें। मेरे पास होम मिनिस्ट्री या फेडरल इंटीरियर मिनिस्ट्री या सीएम शिप या प्राइम मिनिस्टर मेरे जमात से नहीं है। मैं कोलिशन पार्टनर हूं, मैं यही कह सकता हूं ये मसला है, इसको रिजॉल्व कर दें। ठीक, तो वही मैं कर रहा हूं। मुझे रिजल्ट चाहिए, मेरे वोटर्स को रिजल्ट चाहिए, मेरा मैंडेट है, उसकी आवाज उठा रहा हूं मैं। ठीक है जी। सिद्दीकुल फारूक साहब, आप मैं एक बात करूं असदुल्लाह भुट्टो साहब का पॉइंट ऑफ व्यू। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि ये मेरी बहन बड़ी खूबसूरत बात कर रही हैं कि ये गैप खत्म करवाएं, ये हल करवाएं। पीपल्स पार्टी के हुक्मरानों ने, वो वजीर आला हो, वजीर आजम हो, होम मिनिस्टर हो, इन्होंने कुछ नहीं करना। जाके जबरदस्ती पकड़ें, डंडा मारें सर पर, या कोई और तरीका अख्तियार करें तो खत्म करवाएं, तो फिर ये खुश होंगे। किसने करना है? खुदा के लिए आईनी जिम्मेदारी, कानूनी जिम्मेदारी, अखलाकी जिम्मेदारी उन्हीं हुक्मरानों की है जिनके पास इख्तियारात हैं, जिनके पास वसाइल हैं, जिनके पास बजट के जरिए माल आता है, जिनको लिस्टें दे दी जाती हैं, पुलिस वाले बताते हैं, एजेंसियां बताती हैं। लेकिन असल बात यह है कि हुकूमतों के अंदर भत्ताखोरों के और अगवाकारों के और गाड़ियां अगवा करने वालों के सरपरस्त बैठे हुए हैं। उन्हें नहीं पकड़ने, उनको उनका हिस्सा मिल रहा है और वो ये पैसे जमा कर रहे हैं ताकि आंदा इलेक्शनों में लगाएं और एक मरतबा फिर जो है वो किसी ना किसी तरह से वोट लेके आ जाए। बस ये। वसीम भी दबी अल्फाज में बार बार यही कहे पॉलिटिकल सरपरस्ती है। असदुल्लाह भुट्टो, कराची को, सिंध को बेहतर आपसे कौन जानता होगा? पॉलिटिकल सरपरस्ती और किस किस की है? अब जैस्मिन, इस वक्त तो कराची की सूरत हाल इतनी ख़राब है कि मुझे दोस्तों ने बताया कि तारिक रोड जैसे एक ऐसे मसरूफ़ इलाके के अंदर लोग गाड़ी में अगर उतरते बैठते हैं वहीं पर उनको लूट लिया जाता है, कोई पूछने वाला नहीं है। इसी तरह से कराची के अंदर स्ट्रीट क्राइम इतना बढ़ गया है कि जिसका आदमी तस्वुर ही नहीं कर सकता है। भत्ताखोरी के साथ साथ आदमी का अपनी जान, मोबाइल, गाड़ी, कोई चीज़ महफूज नहीं है। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि माशाल्लाह पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाली हमारी बहन भी बैठी हुई है, वो भी ऐसी बातें कर रही है कि जैसे अपोजिशन में बैठी हुई है। हुकूमत उनकी नहीं है कि अभी उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए, उनको ये होना चाहिए, उनको वो होना चाहिए। ये बातें तो मुझे करनी चाहिए, लेकिन मैं तो देख रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी के होते हुए भी वो यही बातें कर रही हैं। इधर मेरे भाई बैठे हुए हैं वसीम साहब, वो भी माशाल्लाह इस हुकूमत का हिस्सा हैं, और वो अगर पार्टनर हैं तो पार्टनर का काम है कि अंदरूनी खाना बैठ के उस काम को करें। अगर वो उससे फेडअप हो गए, समझते हैं कि नहीं होगा, तो फिर माशाल्लाह उस हुकूमत को छोड़ दें ना, फिर उस हुकूमत का हिस्सा तो न रहे ना। ये तो नहीं हो सकता। ईवान में दो चीज़ें होती हैं, एक तरफ होता है ट्रेजरी बेंचेस, एक तरफ होती हैं अपोजिशन बेंचेस, बीच में तो कोई स्टूल भी नहीं रखा हुआ। तो इसलिए मैं तो कहता हूँ कि भाई जमहूरियत का तकाजा ये है कि या आप हुकूमत के हैं तो फिर हुकूमत के साथ रहें, उसके अच्छी बुराई सारी चीज़ें आपके खाते में जाएंगी। भत्ता भी उन्हीं के, जाहिर भत्ते की जो खराबी है ठीक, और उसकी जो लाइबिलिटी है, जहाँ पीपल्स पार्टी पे आयद होगी वहाँ ANP पे भी होगी, वहाँ पर जो MKM पर भी होगी, दीगर जो उनके इत्तेहादी हैं उन पर भी होगी। तीसरी बात जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये है कि यहाँ पर इसके लिए ये जो भत्ताखोरी का मसला है, इसके लिए बातें तो हम सब लोग करते हैं, लेकिन अगर हम इसके लिए संजीदा हो जाएं तो संजीदा होने का मकसद ये है कि 1 पॉइंट प्रोग्राम होना चाहिए, हुकूमत देनी चाहिए कि अगर ये 6 दिन में, 8 दिन में, 10 दिन में ये ख़त्म नहीं हुआ तो हम जो है आपके साथ नहीं चल सकते। लेकिन हमने तो माजी में भी देखा कि MKM आप चाहते हैं कि MQM एक डेडलाइन दे, आज दे दी उन्होंने, इससे बड़ी बात नहीं, डेडलाइन नहीं दी। वो कह रहे हैं कि हम अगर ये इसको नहीं ठीक किया गया तो हम ज्वाइंट सेशन का बायकॉट भी कर सकते हैं। तो कोई मसला नहीं है ना, ज्वाइंट सेशन बायकॉट से क्या फर्क पड़ेगा, आवाम को तो कुछ नहीं मिलना है। अच्छा पहले भी यही हुआ है ना कि इस तरह के ये जो है हम फलां सेशन में नहीं बैठेंगे, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता।